So the mantras in the morning, simple mantras in the morning, Suryaya Swaha, Suryaya Idam Namama, Prajapataye Swaha, Prajapataye Idam Namama. In the evening, Agnaye Swaha, Agnaye Idam Namama, Prajapataye Swaha, Prajapataye Idam Namama. जैसे डॉक्टर उर्विक ने बताया, ये साउंड को इस तरह गाकर हमें इस मंत्र को देना, अर्पित करना है। इसको बिल्कुल एक संगीत की तरह एक लय में बोलकर स्वाहा करना है। And what happens after you perform Agnihotra, a channel is created through all the atmosphere, and life energy, prana energy, which lies above our energy, comes down through this channel. An aura energy field is created around all plants. Plants get nutrition, they get disease resistant. When the flame dies, this energy comes back and is collected in the Agnihotra ash. This is why the ash is used for healing in human medicine and also in agriculture, for giving nutrition to plants and also for healing plants. जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, इस डायग्राम में, इस चित्र में जब हम अग्निहोत्र स्वाहा करते 12 किलोमीटर आसमान की तरफ एक एक सूक्ष्म लहरों का एक बीम तैयार होता है, एक पाथवे तैयार होता है जो पूरी तरह से वातावरण से सूक्ष्म चीजों को अग्निहोत्र के पिरामिड की तरफ खींच कर लाता है। और ये सारे गुण, सारे एनर्जी के एलिमेंट्स इस पात्र में भस्म के स्वरूप में परिवर्तित होते हैं, जिसकी वजह से इस भस्म को बहुत महत्व है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। हम इसका सेवन कर सकते हैं और इसको हम खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So now Agnihotra has an effect on all the environment, on atmosphere, water resources and soil, and brings all nature back to harmony. So अग्निहोत्र वातावरण, पानी और पृथ्वी, एक सारे तत्वों पे काम करता है, इसलिए पूरे निसर्ग में एक हीलिंग लाने के लिए एक सक्षम यज्ञ सिस्टम है। Let's first look at the atmosphere. And in ancient science says that plants get 75% of the nutrients through the atmosphere. Nowadays, science only concentrates on the soil. But according to Vedic science and also according to biodynamic farming, by the way, 75% or more of that plants get nutrition through the atmosphere. But now, if the atmosphere is polluted, this may not happen as it should happen. So plants are suffocated and they are choking to death due to atmospheric toxins. जो खेती करते हैं उसमें हम नॉर्मली पृथ्वी और जल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, बट वैदिक खेती के हिसाब से और बायो फार्मिंग डायनामिक्स के हिसाब से जो नया साइंस आ रहा है उसमें हम कहते हैं कि 70% से ज्यादा, 75% से ज्यादा वातावरण के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जो खेत में जो उगने वाला क्रॉप है उसको वातावरण से सारा न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, और अग्निहोत्र इसके ऊपर बहुत सुंदरता से काम करता है, जिसकी वजह से बाकी सारी डिजीज और फंगाई इन खेतों पे काम नहीं करते। So Agnihotra purifies the atmosphere. It purifies the atmosphere first from biological pollution, that means microbes like pathogenic bacteria. And this you see here. Before you see the petri dishes taken before Agnihotra, and then at the right side, that was after Agnihotra. You see how much Agnihotra purifies the atmosphere. इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड पे जो दिखाया गया है वो बैक्टीरिया और पैथोजेंस है। ये सारे जीव जंतु है जो बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप में पाए जाते हैं। अग्निहोत्र भस्म डालने के बाद और अग्निहोत्र होने के बाद राइट साइड के पेट्री डिश आपके सामने दिखाया गया, जिसमें उनके प्रमाण बहुत कम हुए।
Here you see the graph of these results. इस स्लाइड में When it आपको was दिखाया गया published. या Now let us come to chemical and to physical air pollution. Chemical air pollution is SOx and NOx. Physical air pollution is particulate matter. इसमें SOx और NOx ये केमिकल प्रमाण को दिखाया गया, पार्टिकुलेट थर्ड और फोर्थ कॉलम में दिखाया गया, जो प्रमाण अग्निहोत्र होने के बाद कम होते हैं, जिससे वातावरण शुद्धिकरण का एक ग्राफ दिखाया गया, एक टेबुलर फॉर्म दिखाया गया. And you see that values during Agnihotra go up a little bit because there's some smoke, but then all parameters come down by 30 to 40%. ऐसे देखा गया कि अग्निहोत्र होने के बाद 15 घंटों के बाद जो वैल्यूज मिलते हैं, उसमें एकदम क्लियर ये देखा जाता है कि ये सारे वैल्यूज जो है वो बहुत कम हो गए, जिससे वातावरण पूरी तरह से शुद्ध किया गया है. That was an experiment done at North Maharashtra University in Jalgaon, and Bruce Johnson also was involved in that. महाराष्ट्र में जलगांव में किया गया ये प्रयोग है, जिसपे ब्रूस जॉनसन जी इसमें शामिल थे. Negative ions in the air. Negative ions are an indicator for fresh air. If you perform Agnihotra, negative ions go up. ऐसा देखा गया है कि जैसे हम यज्ञ करते हैं अग्निहोत्र के बाद, बहुत सारे नेगेटिव आयंस ये बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वातावरण में एक तरीके से शुद्धिकरण का ये लक्षण है. And that is different from any other smoke. Normally any smoke will reduce negative ions. This is why people who with asthma, they cannot stand any room where somebody had smoked before. But with Agnihotra, they feel even relief. So the smoke of Agnihotra is different from any other smoke. नॉर्मली हम जब देखते हैं कि कोई भी अगर धुआं है या धूल है, इसमें अस्थमा के लोगों को बहुत तकलीफ होता है, लेकिन अग्निहोत्र होने के बाद क्योंकि ये नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इवन अस्थमा के लोग अग्निहोत्र के सामने बैठकर इसका लाभ उठा सकते हैं. What are the effects on water? First experiment was done in Pune. They took water from a river, very much polluted river, and they poured it through a cylinder, glass cylinder, which was filled with Agnihotra ash. They just poured the polluted water into the cylinder, and what came out was pure drinking water. तो प्रदूषित पानी को अग्निहोत्र भस्म के द्वारा मिलाने के बाद जो रिजल्ट पाया है, उससे पूरी तरह से शुद्ध पानी जो पी सकते हैं, ऐसा पानी उन्होंने प्यूरिफाई करके इसको सिद्ध किया है भस्म के द्वारा. And here you see the results, and here you see the percentage improvement. For example, bacterial growth was reduced by 33 to 30, and by 93 to 98%. तो इस स्लाइड में दिखाया गया कि पानी के जो बहुत सारे लेबोरेटरी के प्रमाण थे, उन सारे प्रमाणों में बहुत सारी चीजों को अग्निहोत्र भस्म और अग्निहोत्र के द्वारा उनके वैल्यूज को कम किया गया है, जिससे पानी बहुत ही नैसर्गिक शुद्ध परिवर्तित होने का एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने सिद्ध किया. Another experiment was done with an effluent of the wastewater of a textile factory, and you see the COD came down more than half. एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रदूषित पानी के ऊपर अग्निहोत्र भस्म से जो प्रयोग किया गया, उसमें आपको दो प्रमाण दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे सीओडी जो एक मेजरमेंट किया गया है, वो पहले के वैल्यू से ऑलमोस्ट हाफ या आधा more than half. More than half. आधे से ज्यादा यहाँ पे प्रमाण कम हुआ है. By just adding half a gram of Agnihotra ash per liter, and also by adding the same amount of Agnihotra ash, water
in which biotic life was no longer possible, it was possible by adding this Agnihotra ash. इस टेक्सटाइल के पानी में पहले जीव जंतु मतलब मच्छियां या फिश या बाकी बायोडाइवर्सिटी नहीं थी। अग्निहोत्र के भस्म डालने के बाद ऐसे पानी में बायोडाइवर्सिटी और बहुत सारी चीज बाद में फिर से जागृत हो गए। ये भस्म का कमाल इस स्लाइड में बता रहे हैं। Here you see the effect on a bore well that was done in Australia, and by just performing Agnihotra next to the bore well and adding Agnihotra ash to the bore well once a week, pH came down from 9.5 to 7.2 and salinity from 1150 parts per million to 720 parts per million. Water which was useless, too bad for humans, plants, animals, became potable water. इस स्लाइड में दिखाया गया कि ऑस्ट्रेलिया में एक बोरवेल था जहाँ पे बहुत ही पानी नमकीन सलाइन था और उसकी एल्कलिनिटी वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। आप लोगों ने काफी लोगों ने पोटेंशियल हाइड्रोजन के बारे में आपके फिजिक्स में सुना होगा कि 7 मतलब न्यूट्रल और 7 के नीचे एसिडिक और 7 के ऊपर अल्कलाइन है। ये पानी के प्रमाण पोटेंशियल हाइड्रोजन में 9.5 का प्रमाण था पहले एनालिसिस में, और 6 महीने अग्निहोत्र के भस्म डालने के बाद उस पूरे बोरवेल का वैल्यू 7.2 पे आया, जो ऑलमोस्ट न्यूट्रल कहा गया। और सैलिनिटी मतलब जो मिनरल्स उसमें पाए गए थे पार्ट्स पर मिलियन, वो 1150 था पहले और फिर वो 720 पार्टिकल के लेवल पे आया, जो ड्रिंकेबल और या पोर्टेबल पानी के हिसाब से बहुत ही अच्छा वैल्यू है। What are the effects on soil? First, let us remember about the importance of soil. So I want to quote one Sanskrit text which was written more than 3,500 years ago. And that says, "Upon this handful of soil, our survival depends. Husband it, and it will grow our food, our fuel, and our shelter, and surround us with beauty. Abuse it, and the soil will collapse and die, taking humanity with it." And as I mentioned before, already now we have lost 1/3 of the arable soil. And if you continue like that, in the year 2050, we would only have 25% per person left. इसमें पृथ्वी तत्व के ऊपर इन्होंने बहुत सुंदर स्लाइड बनाया जिसमें वो कहते हैं कि वेदों में और हमारे शास्त्रों में 1500 साल पहले दिखाया गया कि एक मुठ पर जो हम पृथ्वी को उठाते हैं, मिट्टी को उठाते हैं, उसमें से हम क्या बनाने वाले हैं वो हमें ही निर्णय करना है, और हम उसको उपजाऊ बनाते हैं या उससे हमारी काल चक्र को हम विनाश की ओर ले जाते हैं, इसका निर्णय हमें करना है नैसर्गिक चीजों को करके। अभी हाल में हम 1/3 जमीन पे ही उपजाऊ चीज कर सकते हैं, और ये 1/4 पे जाने वाला है, 1/4 ही होने वाला है 2050 के साल तक। इसको संभालना और इसको दूसरी दिशा में ले जाना अभी बहुत ही जरूरी है। So we have to take care of soil health, and the soil needs to be rejuvenated first with homotherapy methods, and that means that all the soil microbes, starting from the level of viruses, bacteria, fungi, algae, they have to be activated. And in this way, a healthy microflora and microfauna is created, and that becomes a healthy, lively soil. इनका मानना है कि अग्निहोत्र करने से जो जीव जंतु है, मिट्टी में पाए गए जो जीव जंतु है, वो पुनः मिट्टी में जीवित हो जाते हैं, जिससे खेती करना बहुत ही उपजाऊ हो जाता है, बहुत ही लाभदायक हो जाता है, और इन जीव जंतुओं के साथ खेती करना एक नैसर्गिक पद्धति है। And you can see the effect of adding Agnihotra ash. The water soluble phosphorus is increased if you add Agnihotra ash to soil. नॉर्मली जो खेती में हम फास्फोरस को केमिकली हम डालते हैं, जमीन पे डालते हैं, अग्निहोत्र भस्म से, अग्निहोत्र विभूति से ये फास्फोरस का प्रमाण मिट्टी में
खेती के मिट्टी में अपने आप बढ़ता है, जो खेती के लिए बहुत ही एक लाभदायक एलिमेंट है। So that was an experiment done in USA more than 30 years ago. Another experiment was done in Germany, which confirmed the same result. And then there was a hypothesis how that works. And the hypothesis was that phosphorus solubilizing bacteria in soil, they are supported if you add Agnihotra ash. इनके एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने पाया कि फास्फोरस जो एलिमेंट है, फास्फोरस जो केमिकल हम नॉर्मली केमिकल फर्टिलाइजर से डालते हैं, ये फास्फोरस को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया यज्ञ करने से, अग्निहोत्र करने से वो अपने आप उनके प्रमाण बढ़ते हैं, जिससे फास्फोरस जमीन में अपने आप नैसर्गिक तौर से बढ़ जाता है। And that could be confirmed, this hypothesis, by some experiments done in some college in Ratnagiri. And they found out if you add 1% of Agnihotra ash to the soil, the nitrogen-fixing bacteria increase 100 times, phosphorus solubilizing bacteria increase 1,000 times, and at the same time, fungal flora, harmful fungal flora is controlled. रत्नागिरी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने ऐसा सिद्ध किया कि नाइट्रोजन को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया और फास्फोरस को जमीन में बढ़ाने वाले बैक्टीरिया 100 गुना और 1000 गुना बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे हानिकारक जो जीव जंतु हैं, जो एल्गे माने जाते हैं, वो सारे अग्निहोत्र भस्म और अग्निहोत्र के करने से खेत के जमीन में कम हो जाते हैं। Then some other experiments were done in some ICAR research institute, and they show that pathogenic bacteria are reduced if you add Agnihotra ash to the soil. You see here, with Agnihotra ash, there's no growth at all. इस स्लाइड में दिखाया गया 3 तरह के बैक्टीरिया या फंगाई कह सकते हैं। इनको जब भस्म से इनके एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी में किए गए, तो उनके प्रमाण कम होते हुए इनको दिखाया गया इस स्लाइड में। And on the other hand, the beneficial microbes, they are increased if you add Agnihotra ash to the soil. और ये स्लाइड में वो बता रहे हैं कि जो खेती करते समय जो बैक्टीरिया खेत के लिए बहुत ही जरूरी है, वो बैक्टीरिया भस्म के एप्लीकेशन से बढ़े। Then we have seen that sodic soil can be healed with Agnihotra ash. जहाँ पे सोडिक सॉइल, मतलब जहाँ पे पीएच वैल्यू जमीन का बहुत ही उपजाऊ नहीं है, ऐसे जमीन में भी अग्निहोत्र भस्म डालकर उनको वर्मी कंपोस्ट के द्वारा उन्होंने उसको wait. Just translate what I say. Okay. We had 3 plots, one with agrochemicals, one with organic with vermicompost, one with Agnihotra ash and organic vermicompost. Doctor, can you repeat this? I did not get this. 3 plots, one agrochemicals, one organic with vermicompost, one organic with vermicompost plus Agnihotra ash. इस एक्सपेरिमेंट में 3 प्लॉट्स लिए गए। एक है जहां पे केमिकल्स, यूरिया फर्टिलाइजर या ऐसी चीजों को यूज किया गया, दूसरे में वर्मी कंपोस्ट यानी गांडुल खत को इस्तेमाल किया गया, और तीसरे में वर्मी कंपोस्ट यानी गांडुल खत के साथ साथ अग्निहोत्र भस्म को भी इस्तेमाल किया गया, और उसके प्रयोग के रिजल्ट्स अभी बताएंगे। And with agrochemicals, the pH stayed the same, 9.86. With vermicompost, organic vermicompost, it came down a little bit to 9.06, which is already a good achievement. But with Agnihotra ash, it came down by more than 2 points, down to 7.67, which is already quite close to the neutral value. So that was a big achievement in just one season. इन्होंने यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया पोटेंशियल हाइड्रोजन पीएच वैल्यू, जो एग्रो केमिकल, जो यूरिया फर्टिलाइजर्स और उससे 9.8 का प्रमाण आया पोटेंशियल हाइड्रोजन में, वर्मी कंपोस्ट यानी गांडुल खत इस्तेमाल करके 9 का वैल्यू आया, और विभूति, अग्निहोत्र विभूति और वर्मी कंपोस्ट के साथ ये ऑलमोस्ट 7 की तरफ, न्यूट्रल की तरफ जा रहा है पोटेंशियल हाइड्रोजन, जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि
सोडिक सॉइल भी यहाँ पे खेती के लिए बहुत उपजाऊ हो जाता है. So you could say Agnihotra helps with sodic soil, it brings pH down. But no, if you have acidic soil, pH comes up. This we have seen on a farm in Poland. pH was 4.4, and the government engineers who came to test the soil said, no, nothing will grow, just forget about it. But they did. They performed Agnihotra there, added Agnihotra ash to the soil, and they had wonderful results, which you see on the next slide. तो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ये केवल सोडिक सॉइल नहीं, एसिडिक सॉइल जो होता है जहाँ पे पोटेंशियल हाइड्रोजन 4 का प्रमाण होते हुए भी ऐसे जमीन में भी भस्म या विभूति डालकर उसको न्यूट्रल की तरफ लाकर ऐसे जमीन में भी उन्होंने उपजाऊ खेती किया है. इसका ब्रुको अरण्य पोलैंड का ये वो दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पे ये सिद्ध किया गया. And these results are so important because in India alone, we have 7 million hectares of sodic and saline soil. We have 6 million hectares of strongly acidic soil. And if these soils could be reclaimed and tilled by homotherapy methods, that would mean 13 million hectares of productive soil, which could be added to Indian agriculture system. इनका मानना है कि जो भारत में जो उपजाऊ जमीन है वो न्यूट्रल नहीं है. काफी जमीन सोडिक है और काफी जमीन एसिडिक भी है, और ऐसा 13 मिलियन जमीन हेक्टेयर्स ऑफ जमीन को उपजाऊ करने के लिए अग्निहोत्र और विभूति का इस्तेमाल करके उसको उपजाऊ कर सकते हैं. Now, effect of plants on plants. Just two examples. A lot of experiments was done. Just one example is sprouting of germination of seeds. That is very easy to do. You see, left side is with tap water only, right side is with Agnihotra ash, and then we also use control ash. Means we burn the same substances, cow dung, ghee, rice, in some copper vessel, but not the pyramid shape, and not the time of sunrise, sunset, and no mantras. Otherwise, burning the same substances. Still, you see, Agnihotra ash works much better than the just burning cow dung. यहाँ पे कुछ जर्मिनेशन दिखाया गया जिसमें 3 स्लाइड्स बनाए गए. पहला स्लाइड है जहाँ पे केवल पानी टैप वाटर को इस्तेमाल किया गया है. दूसरा है जहाँ पे अग्निहोत्र की सामग्री से अग्निहोत्र जैसा ही एक भस्म बनाया गया, लेकिन वो अग्निहोत्र के समय पे नहीं किया गया भस्म है. और तीसरा है जिसपे अग्निहोत्र कर उन्होंने विभूति का इस्तेमाल किया है, और तीनों में आप देख सकते हो अंतर है. जर्मिनेशन तीनों अलग अलग दिख रहे हैं. इसमें अग्निहोत्र विभूति के कारण तीसरा स्लाइड जर्मिनेशन को समर्थ करता है. And here you see the values compare shoot length, root length, and there's a big difference between Agnihotra and non-Agnihotra. इसमें आप देख रहे हो कि जर्मिनेशन जो हुआ रूट का लेंथ है उन्होंने मेजर करके उसका यहाँ पे टेबल बनाया जिसमें ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि अग्निहोत्र भस्म से उस लेंथ का काफी प्रमाण बढ़ा है. I will skip this. It was about nutrition content. Nutrition content also increases if you perform Agnihotra. ये जो इन्होंने स्लाइड दिखाया उसमें उन्होंने बताया कि न्यूट्रिशन जो कुछ चीजों का प्रमाण देखना होता है कि इससे न्यूट्रिशन कैसे है. ऐसा एक सर्टिफिकेट उन्होंने दिखाया जिसमें न्यूट्रिशन भी बढ़ा गया है जहाँ अग्निहोत्र किया गया. Biodiversity is a very important point, and if we look at one research done in Germany last year, the result was came out, and they said that in the last 25 years we lost 75% of the insect population. जर्मनी में एक स्टडी देखा गया जिसमें हनी बीज मधुमक्खियों का insect population. General insect population. हाँ, तो ये जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो 70% जर्मनी के एक स्टडी में बताया गया. ये बहुत ही कम हो गया जिसकी वजह से खेती में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम शुरू हो गया.
So now, how can homotherapy help to increase biodiversity? There are two examples, some studies done in MP, and here you see invertebrates, and left two columns were research stations upstreams from our homotherapy place, and right side, these two research stations were downstream. And you see a big difference in the number of invertebrates, and the middle column, that is our homotherapy place. नर्मदा नदी के प्रवाह में इन्होंने एक स्टडी किया जिसपे माहेश्वर इनका मेन सेंटर है, जहाँ पे उनका गौशाला और अग्निहोत्र का केंद्र है। तो आप जो बीच का बार देख रहे हो, वहाँ माहेश्वर से संबंधित जो प्रयोग किए गए, उसमें सारे क्वालिटीज जो चाहिए वो सारे बार ग्राफ में बढ़ के दिख रहे हैं। और जहाँ पे उसके पहले ओमकारेश्वर, मंडलेश्वर और कालाघाट और मारवानी, इन जगहों पे अग्निहोत्र का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके ग्राफ्स ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं। Similar result with butterflies. ये बटरफ्लाइज का ग्राफ दिखा रहे हैं, जहाँ माहेश्वर में अग्निहोत्र चल रहा है, उसमें बार ग्राफ काफी लंबा दिख रहा है। And here you see a photo with all the butterflies in this homotherapy place, Maheshwar Goshala. ये गौशाला माहेश्वर में चित्र का एक फोटो है, जहाँ पे बटरफ्लाइज दिखाया जा रहा है। Just about human health, I want to mention two things, because at the beginning I said this environmental pollution has a very big impact on human health, because maybe 20 or 25% of the deaths in India are related to environmental pollution. So now we want to look at how can Agnihotra help. And one thing is the Bhopal catastrophe, when because of a explosion in the Union Carbide factory in Bhopal, this methyl isocyanate, MIC, leaked, and many thousands of people died, and tens of thousands of people were heavily injured. But all those who performed Agnihotra in their house, nothing happened to them. ये 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी भारत में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट बोल के एक गैस रिलीज हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल से, और उन्होंने देखा कि कई लोग, 1000 लोग उस दुर्घटना में घायल हुए थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, कई लोग मरे भी थे। लेकिन जहां जहां अग्निहोत्र का प्रयोग किया जा रहा था, जहां जहां यम से अग्निहोत्र और बाकी यज्ञ हो रहे थे, काफी लोग उस घटना से बचे और उनको हॉस्पिटल भी जाना नहीं पड़ा।